196 196 کے تحت ایسے تمام جرم جو آپ نے ریاست کے خلاف کیے ہوں اس میں وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی اجازت پہلے درکار ہوتی ہے، جو اس ایف آئی آر میں نہیں تھی، اور ایس ایچ او نے اپنے ایس پی کو کہا، ایس ایچ او میمن گوٹ نے اس رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ پہلے اجازت لینی پڑے گی، انہوں نے کہا بعد میں لے لیں گے. تو اس پریٹیکس پہ اور سغرا بی بی کے پریٹیکس پہ وہ میرے خیال میں ایف آئی آر وہاں پر کینسل ہوگی. اب آپ کو پتا ہے کہ ارشد شریف شہید کو ملک سے جانا پڑا اسی ایف آئی آر کے فوراً بعد. جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے انہوں نے ٹوٹل 9 ایف آئی آر جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں جو ارشد شریف صاحب کے اوپر ہوئی ان کی رپورٹ کے اندر. ان میں 6 ایف آئی آر مئی کے مہینے میں ہوئی، ایک ایف آئی آر شاید اس سے پہلے ہوئی تھی، اور پھر 2 سے 3 مہینے کے وقفے کے بعد یہ ایف آئی آر ہوئی جو اگست کی 9 تاریخ کو ہوئی، جس کے فوراً چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے ملک چھوڑ دیا، اور پھر ایک سبسیکوینٹ ایف آئی آر جا کے کراچی میں ہوئی. سو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے یہ واضح کیا کہ کمپیلنگ ریزن لگتا ہے جو ان کے اوپر کرمنل کیسز کیے گئے، اور اس میں بڑی ساری باتیں میں ان کے میرٹس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن یہ اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کمپیلنگ ریزنز میں یہ جو کیسز کیے گئے یہ بھی تھے، جس کی وجہ سے ایونچولی ان کی شہادت ہوئی. تو اب کیونکہ میٹر سبجوڈس ہے سپریم کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی جمع ہو چکی ہے. سپریم کورٹ نے جو ان کو پاکستان کا آئین استحقاق دیتا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت، جس میں ان کے پاس 199 کے جو تمام اختیارات ہائی کورٹ کے وہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ وہ اعلیٰ ترین عدالت ہے ان کے پاس کوئی بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کے اختیارات ہیں، کسی مقدمے کو معاف کیجیے گا ڈیٹیل سے دیکھنے کے اختیارات ہیں، اور اگر وہ مناسب سمجھیں اور انہیں لگے کہ یہاں پر وائلیشن ہوئی ہے لا کی، بیسک رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، یا وہاں پر اگر لگے کہ یہاں پر جو ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے یا کوئی بیڈ موٹیویشن کے ساتھ ہے، یا یہ جو پورا سٹرکچر کھڑا کیا گیا یہ میلافائڈ ہے، تو وہ اس مقدمے کو سرے سے کویش بھی کر سکتے ہیں. اسی بنیاد پر ہم نے عدالت کے سامنے، آج میرے وکیل موجود نہیں تھے، میں نے ذاتی طور پر بات کی کیونکہ وکیل کے تھرو بات کرنا میرا ایک آئینی حق ہے. تو میں نے آنریبل جج صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں ایک تاریخ دیں تاکہ آج میرے وکیل موجود نہیں تھے، وہ اگلی پیشی پہ آئیں اور ڈیٹیل میں آرگومنٹ کریں اس چیز کے اوپر کہ جب یہ میٹر آلریڈی سب جوڈس ہے سپریم کورٹ کے سامنے، تو پھر وہاں سے پہلے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ اس پہ آنا ہے اس کو پہلے دیکھ لیا جائے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف لا. لیکن کیونکہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، یہ عدالت جو بھی فیصلہ دے گی، مریم صفدر ہم ہیں نہیں کہ دھمکیاں دیں، ہم سر نیچے کر کے ہم اس فیصلے کو مانیں گے. ہم اس عدالت کا ویسے ہی احترام کریں گے جیسے کسی اور عدالت کا احترام کرتے ہیں. تھوڑا سا سائڈ پہ. سو یہ ایک سائڈ ہو گئی کہ کس طریقے سے یہ تمام، اس کے بعد درجنوں کیسز میرے اوپر کیے گئے جو میں مختلف عدالتوں میں گیا اور وہاں سے انصاف لینے کی کوشش کی. اس کے بعد کسٹوڈیل ٹارچر کا یہ جو سارا معاملہ شروع ہوا ہے یہ میرے پہ شروع ہوا اللیجڈلی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے ریاست کے ایک ادارے میں بغاوت کروانے کی کوشش کی. میں نے تو نام نہیں لیا تھا، میرے پہ الزام تھا، اور مجھے اس کی وجہ سے رندا پھیرا گیا. لیکن آپ کے ڈیفنس منسٹر نے 2 راتیں پہلے شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر یہ ڈائریکٹلی کہہ دیا. میں ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں، میں خود سے نہیں کہہ رہا. ان کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں، جب وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی ریٹائرڈ دونوں جنرل صاحبان ان کی بات کر رہے تھے کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض صاحب کو یا آرمی کے آفیسرز کو اگر غیر قانونی آرڈر ہے تو وہ نہیں ماننا چاہیے. میرے پہ الیج کیا گیا، میں نے نام نہیں لیا کسی ادارے کا، میں نے کسی دفاعی ادارے کی بات نہیں کی تھی. میرے پہ الیج کر کے، کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، کیونکہ میں اشرافیہ سے نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس سفارش نہیں ہے، کیونکہ میرے بڑی بڑی جگہوں پہ کانٹیکٹ نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس بڑے بڑے وکیلوں کو دینے کی فیس نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس پورے کے پورے ٹینٹیکلز نہیں ہیں، کیونکہ میں رات کو میسج کر کے ہارا ہوا حلقہ جیت نہیں سکتا.
ख्वाजा आसिफ की तरह, क्योंकि मेरे बाप दादा सियासत के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने मिलें और फैक्ट्रियां नहीं बनाई हुई, क्योंकि मैंने गोल्फ कोर्सेज के ऊपर कब्जे करके हाउसिंग अथॉरिटीज नहीं बनाई, क्योंकि मैंने किकबैक्स नहीं ली, क्योंकि मैंने अपने डीसी एसी अपनी मर्जी के नहीं लगवाए, क्योंकि मैं एक माफिया का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मैंने तो नहीं कहा। और मेरे ऊपर केस बना के पिछले 8 महीने से मुझे रगेदा जा रहा है। और उसने बबांगे दोहल टेलीविजन के ऊपर कहा, जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, और यही नहीं कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा वो अल्फाज, क्योंकि मुझे अपने इदारों से प्यार है, लेकिन इसी शख्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हड्डियों और गुदे का एक बयान दिया था। इन्हीं के एक्स स्पीकर ने एक बयान दिया था, मैं वो रिपीट भी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे मुल्क की शान के खिलाफ है। इन्हीं के एक एक्स स्पीकर ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था हमारे इदारों के खिलाफ। इनको तो कोई नहीं पूछता, इनके ऊपर पता नहीं कौन सा, पता नहीं सीआरपीसी कोई और है, पता नहीं इनके ऊपर आइन के आर्टिकल कोई और है, पता नहीं हमारे ऊपर आइन के आर्टिकल को और है। फिर लगता कि हैं और बिकॉज हम आम लोग हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं, जो आइन में नहीं भी लिखा हुआ वो हम पे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारी आवाज नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो भी कर लो उसका कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ना कल को। जिन्होंने झूठे मुकदमे किए उन्हें कोई डर नहीं है, इन पे करे ना जरा। ये जब हुकूमत में आते यही राणा सनाउल्लाह साहब ने धमकियां नहीं दी थी, इन्होंने नहीं दी थी ये धमकी कि जो फैसला करेगा उसको देख लेंगे। इन्होंने जजेस को धमकियां नहीं दी, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को धमकियां नहीं दी, कमिश्नर का नाम लेके, आईजी का नाम लेके, क्योंकि वो लोगों को पता है कि उनके साथ क्या करेंगे, इसलिए वहां पर जलते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले को फड़का के रख दो, क्या फर्क पड़ना है? कौन सा कोई आपको कीमत अदा करनी पड़नी? जिले शाह मार मार के शहीद कर दो, कौन सा मोल पड़ना है? उसके बाद उसके वालिद से जो दिल करे बयान दिलवा लो। सलाम है उस वालिद को, सलाम है उस मां को, जिसने अपने मीगर हालात के अंदर एक बेटे को परवान चढ़ाया, जो एक स्पेशल चाइल्ड था, दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा दरवेश था, सबसे मोहब्बत करने वाला था, और उसको वतन पे निछावर कर दिया, और फिर उफ नहीं किया। अपनी मजबूरियों की वजह से जो उन्हें स्टेटमेंट देनी पड़ी वो भी आपके सामने है, जो उसकी रिपोर्ट है वो आपके सामने है, क्या कुछ हुआ है। लाहौर की पुलिस ने उस बच्चे के साथ क्या किया है वो आपके सामने है। तो इसलिए मैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं खड़े होंगे तो और कोई खड़ा नहीं होगा। अगर तो मेरा जुर्म था जिसने कोई नाम भी नहीं लिया था, तो फिर ख्वाजा आसिफ क्यों दंदनाते हुए खुले फिर रहे हैं? क्या उन्होंने बगावत नहीं करवा रहे? वो क्या वो सबक नहीं दे रहे? वो तो नाम लेके कह रहे हैं। मैंने तो उस इदारे के बारे में ना नाम लिया था ना बात की थी। तो इसलिए एक तो ये बात। दूसरी बात मैं शोएब शेख के बारे में कहूंगा। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता कि वो एक छोटे से घर में कराची में एक बहुत गरीब फैमिली के अंदर वो शख्स पैदा हुआ। वो मेहनत करके स्कॉलरशिप इसलिए लेता था कि शायद घर वालों के पास फीस के पैसे ना हो अच्छे स्कूल में पढ़ाने के, तो वो स्कॉलरशिप लेता था ताकि फ्री पढ़ता जाए। उसने इस मुल्क का नाम रोशन किया आईटी में, और उसके खिलाफ कोई मुद्दई नहीं है, उस पर भी केस बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आवाज रखना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट बात करना चाहता है। जब से बोल टीवी आया पाकिस्तान के चैनलों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आपको पता है 3-4 साल तो उसको हिस्सा ही नहीं बनने दिया चैनल्स का। तो जो माड़ा बंदा है वो तरक्की कर ले तो तब भी ये नहीं मानते। हमारे एक दोस्त लाहौर में कहते हैं आप किधर से मिडिल क्लास हैं, आप किधर से मिडिल क्लास है। वो बार बड़ी तकलीफ है उन्होंने कि मैं अपने आप में मिडिल क्लास कहना है। भाईजान गड्डी ले लैण नाल या चंगे थां ते घर लैण नाल तुसी मिडिल क्लास तो नहीं निकलते। पूरी की पूरी माफिया हो आपकी, अरबों रुपया बनाए फिर आप मिडिल क्लास से निकलते हैं। जब तक आपके पास अरबों रुपया नहीं आप मिडिल क्लास ही हैं। आप पे एक केस पड़ जाए ना, ये जो आप गीदड़ भक्तियां देते हैं ना बैठ के, अल्लाह ना करे आपके साथ ये हो, और अगर हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मैं आपकी तरह नीचे नहीं गिरूंगा कि उस वक्त मैं आपके ऊपर ताने कसूं, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास ही हैं। आपका डीएचए में घर है, करोड़ों की जायदादें आप भी हैं, लेकिन एक केस में आपकी हवा निकल जानी है, आपका टायर ट्यूब दोनों फ्लैट हो जाने मेरी तरह। एक केस में, एक केस आप पे पड़ा, आपको पता लगना मिडिल क्लास और अशराफिया में फर्क क्या होता है। इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर वो एक्शन लें जो पुलिस बार बार कर रही है। ये जो पुलिस लोगों को हिरासत में लेके मार रही है बार बार, इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हम डिफरेंट साइड पे निकल जाएंगे। मीडिया हमारा साथ दे, इस पे मीडिया हमारा साथ दे, और ये जो मीडिया के साथ
सहाफियों के साथ हाई कोर्ट के अंदर हुआ। साकिब बशीर जैसे मायानाज रिपोर्टर हैं, हमारे खिलाफ भी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन पुराने रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, आप सब उनको जानते हैं, उनके साथ काम करते हैं। जो सलूक उनके साथ किया गया उसके बाद एफआईआर नहीं दी गई। इसी तरीके से जो सलूक शोएब शेख के साथ किया जाता है, इस सब को बंद करना चाहिए। और इसमें मैं मुल्क की आला तरीन अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी जमात के साथ सिस्टम किया जा रहा है, आम आदमी के साथ किया जा रहा है, इमरान खान को हर मुकदमे में ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर बराए मेहरबानी नोटिस लें, एक्शन लें। ये ना हो कि जुल्म के अंदर लोग पिसते रहें और बहुत देर हो जाए। शिवाजी साहब, आप पर भी तशद्दुद हुआ, आपने भी जिस तरह मीडिया पर भी बताया, इससे पहले भी हमें खबरें इस तरह से मौसूल होती रही, लेकिन सेम इसी तरह से जावेद लतीफ ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मरीम नवाज ने भी कहा है कि नवाज शरीफ को भी जहर दिया गया था, इसी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। उस वक्त भी उनके साथ रवैया पीटीआई हुकूमत में। देखिए, बात यह है कि मरियम सफदर साहबा का ये हक है, इस्तेहकाक है कि वो अपने वालिद के बारे में कोई भी बात कहे। मेरी तशद्दुद के साथ ये जबड़े की हड्डी तोड़ी गई है। आप मुझे अभी किसी लैब में ले जाएं, आपको एक्सरे में नजर आ जाएगी तोड़ी गई है कि नहीं। डॉक्टर का सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि तोड़ी गई है। तो जब उनके वालिद वहां गए थे, तो अगर आपको कोई जहर दी जाए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दी जा सकती, दुनिया में ऐसे काम होते हैं, अगर उनको जहर दी गई तो रिपोर्ट करवा लेते, सामने आ जानी थी बात। उन्होंने, वो लंदन में थे, उन्होंने क्यों नहीं रिपोर्ट करवाई? अगर करवाई है तो सामने ले आए। मेरे ख्याल में तो नैब की कस्टडी में नहीं थे जब वो बाहर गए थे, वो जेल में थे, और वहां मैं उन्हें मिलके आया था, वो दुरुस्त हालत में थे। लेकिन अगर फिर भी उनकी कोई एक्विजिशन है तो उसे इन्वेस्टिगेट करवा लेते। अच्छा गिल साहब, ये बताएं कि जिले शाह पे जो तशद्दुद हुआ है, इस तरह हमने 25 मई को देखा है, फिर आपकी हुकूमत भी आई पंजाब में, तो जितने पुलिस वाले थे उनको किसी को भी सजा नहीं दी गई, तो अभी जिले शाह को फिर दोबारा शहीद कर दिया गया, तो अब अगर आप लोगों की हुकूमत आती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं बड़ा मायूस हूं, मैं आपको सच बताऊं। ये अगर तो हमें पूरी तरह से एम्पावर करके हुकूमत आई तो हम कर सकेंगे, अगर कमजोर हुकूमत आई तो मुश्किल होगा, क्योंकि यहां की अशराफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। अशराफिया एक दूसरे को बचाती है, वरना मॉडल टाउन का इंसाफ ना हो जाता, वरना दूसरी चीजों का इंसाफ ना हो जाता। इसलिए ये जहन में रखिए कि हमें एक नए सोशल और अदालती कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, जिसमें हम बड़े और छोटे को बराबर डील करें, एक जैसी सजाएं दें। फिर इन जानवरों ने बंद होना है, वरना ये जो पुलिस के अंदर हमने काली भेड़ें भर्ती कर रखी हैं, इन्होंने लोगों के साथ ऐसे ही करना है। बहुत शुक्रिया।